Our consciousness expresses itself in 6 ways, in 6 modes. First is Icha Shakti, that's desire. Many type of desires arise in the mind. When desires are fulfilled, another desires come. So one after another, desires keep coming. And then we get caught up in the whole cycle. And small desires and big desire, doesn't matter. A desire is one of the mode, correct? And then knowledge. You want to know. You get to know about it. You know about this, you know about that, and you read books and you acquire knowledge. The second is knowing. You made a mistake, you came to know about the mistake afterwards. When an action is finished, then the knowledge of the action comes to you. This is the power of knowing, knowledge, Gyan Shakti. Then the third mode is Kriya Shakti, activity. This is part of life. There are activities happening all the time. Some or other activity you keep doing. And every action is part of the Kriya Shakti. And then the fourth is Shanta. Shanta means ability to become still and quiet. Everybody has this ability. We need to simply develop that. And then there is what is called Vimarsha. Vimarsha means understanding. It is not knowledge, but this is judging. Knowledge, you get it, then you judge whether it is right or wrong, good or bad. The judging inside you, analysis and judgment, that is also power. And then the final one is Prakash, means presence, just light. So in Yagyas, all these 6 powers are finding its fulfillment. See, we don't understand what is happening, but the energy is high and then you are high. Correct? It is not something you think and you talk and no, you cannot even express it in words. Can you express? No. You cannot express in words. You cannot. It is beyond your logical understanding. You're sitting, you don't understand what the chanting is going on and ceremonies are happening. But it has created a wonderful energy. You just feel the energy beyond your thinking. That is called Prakash. Presence. Experiencing the presence. And very little knowledge or very little awareness about this is there in the world. We always say live in the present moment. Present moment is so deep and vast that it invokes the presence there. To experience presence, you have to say the whole world doesn't exist. The world is not real. The world real means hanging on to the past or trying to hold on to the future, design the future. When can you be in the presence totally? When you let go of the other things. What are the things? Icha. Let go of the desire. Desire is not now, it is in the future always. It puts you in the future. But when you know your desire is going to get fulfilled or it is fulfilled, it's done, what comes up is presence, that is bliss. And similarly, all your questions have gone. Vimarsha. The only thing you have to vimarsha is, this whole thing is a dream. It doesn't matter. That discrimination. Only one judgment that can take you to the self. That is, this whole thing is not there. Nothing is there. What the scientists have said today after so many years, the scientists say the world doesn't exist. And my dear, this is what I've been saying for so many times. And your intellect is going, chewing it. Why this? Why that? Why that? Why? You want explanation for everything. The world cannot be captured by your explanation or your little intellect. And your intellect, that little intellect is making you miserable because it turns itself into ego. If the same intellect gets into this mode, it's all nothing. So that vimarsha, either
it gets you into the world questioning everything and you become miserable, or you do only one question, that is, what is reality? And that takes you to the silence. Because there is no answer. Who am I? That is also vimarsha. Who am I? Oh, this doesn't exist. Then the whole world is maya, illusion. It's everything is changing. Nothing is permanent. Then the presence comes prakash. And how do you experience the prakash? Is through this knowledge, this understand, vimarsha. Well, it's not working for me, I'm not that intelligent. Then come and sit in the yajna. So come and sit in the presence of the master and you're not going to answer your question. What is happening? Without your knowledge, the intellect is shutting itself down and the prakash or the presence is coming up. That is why it said, sankalpa, you take a desire, a wish, and then you leave the wish. You drop it. Say, this is my wish. Okay, I drop the wish. Knowing that it will be taken care. This or something better than that will be done. That is so beautifully structured in this whole thing. Afterwards, say, abhupasparsha means I got in touch with something which is not my nature, which is not very big. It's a small things. Every time you make a sankalpa, then the Pandit say, abhupasparsha. At the end of the sankalpa, it says, oh, I got into small things. Now I am washing my hands off. Every sankalpa you do, drop it and you wash your hands and say, we are in the smallness. But it is necessary. So you do it and then you become aware, I am much bigger than this. See, in life, every little thing has a meaning. Even a needle, a safety pin has its value. Right? You have to tie something. A safety pin is necessary. A button in your shirt has a place too. Right? Just imagine someone is riding a motorbike and then all the buttons are gone, the shirt is going on the face, they will get into accident. Little things have have a significance. Small things do have significance in life. So, significance of insignificant things is what one should be aware and recognize that. Divine is not sitting somewhere up, it's permeating everything. So recognizing it's all permeating, you honor and then you move on to the Shanta, the serenity, quiet state of the being. Then the presence. So remember six modes of our mind, intellect, and ego. The consciousness has these three forms as 6 modes. Desire, power to act, power to know, knowledge, and then power to discriminate or judging, discriminating, agreeing, accepting, all that, holding on to accepting, and then prakash, presence. So that is what is created in Shanta, the quietness, serenity, prakash. Very few reach to these last two stages. If you are stuck in desire too much, you will be miserable. If you are stuck in too much of knowledge, of you know everything which you need not know at some point of time, then also it can, or if you don't know, you become miserable. Then action. No action or too much action or improper action, all will, or others' action can all lead you into misery.
These four. Then serenity. If you don't know how to become quiet, you can become miserable. It's a catch-22. If you know how to become quiet, then you can overcome misery. If you don't know how to become quiet, you become even more miserable. And if you don't act when you have to act, you become too quiet, then also you become miserable. Then vimarsha. Vimarsha is there always judging others, judging yourself, and you try to correct yourself, correct others. It's not going to work. If you want to shoot your rocket up, you want to go into space, if you keep filling all your shortcomings, it's like filling the pits. It's never going to end. Got it? It's never going to end for if you try to fill your uh, shortcomings or desires. I want this, I do this. No, 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 no. Why this? Why that? Why? No, no, no. Isn't it? Then the presence, Prakash, doesn't come at all. The logic, the vimash should be used only to see nothing. This is all nothing. Or everything happens by some karma. I don't know what it is. Then what happens immediately? Serenity dawns. You become quiet. And then you get entry, the password into another dimension. And here, direct password, that's what you got 2 days, 3 days, 4 days, all being ecstatic and completely in high energy presence, right? So your very presence should bring smiles in others. And that's what you take from here. What is the takeaway? From yajna you go, you don't have to talk to somebody and convince them anything. Your presence is making others happy. क्या बोला जाए? बोलिए। Swami ji, हाँ, actually this is very overwhelming when I heard it for the first time. When you reach a fourth stage of Shanta, you have actually become quiet. So then you will not do that analysis is already gone beyond, na Swami ji? yeah, So then you will experience presence. correct. But because in the stages he has said Shanta and then he has said Vimarsha, which is actually judging and understanding and analysis. But I felt when you have become quiet, you will not go into that analysis partner later. Shanta is the ability to quieten the mind. शांता क्या Mind. है? मन को शांत करने की क्षमता। क्योंकि जब वो इच्छाएं उठेंगी, क्रिया और ये जानने वाला जब फेज गुजरेगा ना, तो वो आदमी को अशांत कर देता है। शांता, जब मन को हम शांत करने की क्षमता हमारे अंदर होती है, शांत करते हैं, तब विमर्शा फिर जजमेंट में नहीं होता, फिर ये रियलाइज होता है कि ये सब कुछ सत्य है ही नहीं। तो क्योंकि वो रियलाइज होता है हमारा मन शांत होता है स्वामी जी। नहीं, वैसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये 1 by 1 है, बट बात ये है कि जब मन को शांति नहीं कर पा रहे उन तीन चीजों से,
तो ये रियलाइज कहाँ से होगा कि ये सब उस तरफ जाएगा नहीं ना मन, फिर मन उसी तरफ जाएगा, ऐसा क्यों है। अगर जब मन शांत नहीं है तो यही देखेगा ना, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों बोला, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। तो मेरा जब मन शांत होगा तभी मुझे रियलाइज होगा ना कि ये माया है, मतलब दिस इज नॉट द रियल वर्ल्ड, वो वाली चीज ना। उसके बाद ही पॉसिबिलिटी है। Okay. सीमा कुछ बोल रही थी? नहीं। Yes, Swami. स्वामी जी, हाँ। ये एक्शन के बारे में जब गुरुदेव बोल रहे थे कि नो एक्शन, ज्यादा भी एक्शन, फिर प्रॉपर एक्शन, ये मेजरेबल, तो ये प्रॉपर एक्शन कैसे मेजरेबल, ये नहीं समझ, या हम समझे नहीं, क्या आप बोले इसके बारे में? अगर एक्शन प्रॉपर नहीं होगा तब हम मिजरेबल हो जाएंगे, या हाँ, जहाँ एक्ट करना है वहाँ एक्ट नहीं करेंगे तो मिजरेबल हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। जहाँ नहीं करना था वहां करके दुखी हो जाएंगे। तो प्रॉपर एक्शन को भी मेजरेबल बोले, ऐसा नहीं? नहीं। नहीं, अच्छा। Swamiji, will you explain that abhupa sparsha again? वो तो संकल्प छोड़ने का, कि अरे ये जो मैंने संकल्प किया कितनी छोटी सी थी, दत्त छोड़ो इसको, हाथ धो, नहीं करते, हाथ हाथ धो के कहानी खत्म करो, ऐसे। तो ये चैंटिंग में आता है स्वामी जी, पंडितों का? जब संकल्प हो जाता है तब अच्छा। वो जल लेके जब छोड़ने के लिए बोलते हैं तब बोलते हैं। हम्म। अभी जी प्रकाश के बारे में थोड़ा। ये पहला जो पांच है, ये हमको जो माया है उसमें उलझा के रखता है, जो रिलेटिव वर्ल्ड बोलते हैं ना, उसमें उलझा के रखता है पहला पांच। प्रकाश समय स्थान काल समय और सबके परे, और पहला पांचों है काल स्थान परिस्थिति स्थिति से जुड़ा हुआ। तो जब तक मन समय या काल स्थान व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में उलझा हुआ है, प्रकाश की अनुभूति नहीं हो सकती। वो तो गुरुदेव की कृपा है, सुदर्शन क्रिया, ध्यान, ज्ञान, ये संग जो मिला है, संगति मिली है, यज्ञ वगैरह होता है, तो उसकी झलक हमको बार बार मिलती है। वहाँ बैठते हैं तो मन इन पांचों के परे चला जाता है, तो एक झलक तो मिलती ही है, अनुभव तो होता ही है, पर हम वहाँ टिक नहीं पाते, क्योंकि फिर आदत है पुरानी, कोई नई इच्छा। हम नवरात्रि में आश्रम जाएंगे, चले गए तो ठीक, नहीं गए तो दुखी, चले गए तो वहां अगर रूम अच्छा नहीं मिला तो दुखी, रूम अच्छा मिल गया तो किचन में लाइन लंबी बहुत है, आगे बैठने नहीं मिला, गर्मी बहुत है, लोग झगड़ते हैं, दुनिया उलझा के रखेगी, फिर इच्छाएं। ये नॉलेज
2-3 बार ग्रुप में डिस्कस हुआ। हम लोग एक तो ये नहीं समझते, हमको आदत हो गई है जो चीज काल स्थान सब चीजें से मुक्त है ना, उसको जोड़ के देखते हैं। नवरात्रि में बहुत मजा आया, नवरात्रि का अनुभव अद्भुत था। आश्रम जाके बहुत आनंद आया, गुरुदेव के प्रेजेंस से बहुत अच्छा लगा। हाँ, अच्छा तो लगता है, लगेगा। तब तक अच्छा लगेगा जब तक अनुभव से ऊपर नहीं उठते। आदत पड़ी भी अनुभवों को बार 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 अनुभवों में बहने की। यहाँ खाना खाए तो बहुत अच्छा था, उसका वहाँ का जो कुकिंग है, बहुत आंध्र मील बहुत अच्छा है अच्छा, निश्चित रूप से अच्छा होगा, क्यों नहीं अच्छा होगा। तीर्थ यात्रा पर गए तो बहुत अच्छा लगा, क्या अद्भुत अनुभव हो, होगा बिल्कुल होगा। पर आदत पड़ी हुई है, मैच्योरिटी आती ही नहीं कि ये जो अनुभव कर रहा है उस पर थोड़ा ध्यान देते। यज्ञ में बैठते हैं तब जो अनुभव करता है उस पर थोड़ा सा जाके टिकते हैं तो कुछ प्रकाश की अनुभूति होती है, लेकिन फिर वही सब अनुभवकर्ता से, एक्सपीरियंसर से अनुभव अधिक महत्वपूर्ण। दुनिया बहुत बुरी है, ये दुनिया अच्छी नहीं, लोग अच्छे नहीं। बैंगलोर के लोग अच्छे नहीं, बैंगलोर के लोग बहुत अच्छे हैं, मराठी लोग ऐसे होते हैं, आर्टवलिंग के लोग ऐसे होते हैं, वॉलंटियर लोग ऐसे करता है, वो गेट पे रोक देता है, उन लोगों को समझ में नहीं आता है। अनुभव से बाहर निकलते ही नहीं है, नहीं निकलेंगे तो फिर अरे कोई बच्चे थोड़ी रह गए कि चॉकलेट का एक्सपीरियंस और ये सब एक्सपीरियंस, खिलौने का अनुभव है तो वही खिलौना ही तो है ये सब। कब तक इसी में उलझे रहेंगे, उलझे रहेंगे तो पांचों में उलझे रहेंगे, माया के संसार में, ये जो संसार है उसमें उलझे रहेंगे। पट्टा तो नहीं पकड़ में आएगा। झलक, एक झलक उसकी मिलती है, जाना चाहता है उधर बन, पर दुनिया में उलझ जाता है। यही माया है जो गुरुदेव ने बोला। माँ के हाथ, एक हाथ में क्या गन्ना और दूसरे हाथ में 5 फूलों के बाल। वो बाल माँ चला के हमको उलझा कर रखती। क्या प्रकाश की Swami, how अनुभूति, प्रकाश की अनुभूति होती है या दिखता है स्वामी? अनुभूति होती। और क्या बोल रहा था तू? Swami, how long or how much time can we remain in the presence? Can we remain there for a long time Yeah, we can remember. unless we keep again the cycle of desires and all that? हाँ, डिजायर तो भाई कुछ ना कुछ तो काम करेंगे ही ना, क्रिया शक्ति तो है ही,
इसीलिए बीच में गुरुदेव ने बोला ना, सिग्निफिकेंस ऑफ इनसिग्निफिकेंट थिंग। Insignificant things. वो भी सब चीज का अपना अपना स्थान है, हमारे जीवन में अपने स्थान से कहीं ज्यादा बड़ा होता है, हम अति तक उसको ले जाते हैं। He mentioned that he made us experience presence in the yajna. हाँ, जैसे कल मैंने शेयर किया ना, गुरुदेव आश्रम नवरात्रि के कारण वो सब, जिस जप में थोड़ा एफर्ट लग रहा था वो एफर्टलेस हो गया। तो अपना उसका भी स्थान, लेकिन अगर मैं ये मान लूं कि ऐसा वहीं पर होगा, गुरुदेव की स्थिति पर ही होगा, तो ये तो खैर And I'm not in the presence. प्रकाश का अर्थ ज्ञान भी तो होता है ना, प्रकाश का मतलब ज्ञान तो होता है ना, ज्ञान। ज्ञान होना, नॉलेज। नहीं नहीं काका, ज्ञान तो विमर्श में है। वहां पर केवल एक क्या बोला जाए, अनुभूति है। वो अनुभूति सबके परे। ज्ञान भी एक दृष्टिकोण से देखे ना तो सापेक्ष हो जाता है, रिलेटिव हो जाता है। जो रिलेटिव के भी परे है उसकी अनुभूति। तो स्वामी जी वो है, उसका पता हमारी सेंसेस के परे ही चलेगा ना, मतलब सेंसेस के थ्रू तो नहीं पता चलेगा। मन, बुद्धि, अहंकार जब तक इस 6 मोड में चलता रहेगा, 5 में चलता रहेगा, तब तक नहीं है। तो दर्शन क्रिया के बाद कभी कभी जो फीलिंग होती है वो प्रकाश बोल सकते हैं स्वामी। हम्म ये बात से तो कुछ दिन पहले ही आप बोले थे ना कि इतना अपने आप को, अपने शरीर को, मतलब इतना क्या टॉर्चर करने के बाद भी पहली बार जब क्रिया करने बैठते हैं तो कुछ अनुभूति होती है। तो यही हुआ कि 5-6 चीज भी है तो भी प्रकाश का झलक मिल जाता है। करेक्ट करेक्ट। है ना? यही तो आश्चर्य की बात है, अद्भुत नहीं। तो स्वामी जी, हाँ, आप बोले थे कि सवाल पूछेंगे तो पूछे थे गुरुदेव से। अरे वो तो ऐसे। पर है बहुत बढ़िया सवाल स्वामी जी। ये तो हम्म अद्भुत तो है ही। जानने का मन। आखिर आश्रम में जाके इतना दुनिया भर में उलझे रहते हैं, जिंदगी में उलझे रहते हैं, वहां उलझते हैं। अनुभव तो हो ही जाता है, यज्ञ में बैठते हैं। एक बार में नहीं होता, पहले दिन नहीं होता, दूसरे बार में, तीसरे हो ही जाता है। स्वामी जी, वर्तमान क्षण गहरा होता है, यहाँ पे इस रेफरेंस में कहा गया? वो क्या बोलूं इसमें, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। वर्तमान क्षण गहरा होता है,
मतलब ये कि वर्तमान क्षण के अलावा कुछ होता ही नहीं। जब तक मन, गुरुदेव ने बोला ही, भूत भविष्य ये सब में लगा रहेगा तब तक हालांकि ये तो पहले भी बोला है कि हर इच्छा का मतलब होता है भविष्य के प्रति आशाएं, भविष्य में आशा। वर्तमान क्षण संपूर्ण नहीं है, वर्तमान क्षण ठीक नहीं है, इच्छा का अर्थ इतना ही होता है। जी सर, एक बार रिपीट करेंगे, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। नहीं हुआ, कोई बात नहीं। Swamiji, we are honoring that moment. Na? That is why it is so gehra. Na? इच्छा का मतलब होता है कि वर्तमान संपूर्ण नहीं है, प्रेजेंट इज नॉट इनफ, नॉट सफिशिएंट। इच्छा का अर्थ होता है भविष्य में कोई आशा। तो इच्छा हमको वर्तमान से दूर लेके चली जाती है। इच्छा के बाद क्या था, डिजायर के बाद क्या था? नोविंग, ज्ञान नोविंग। शक्ति, ज्ञान ज्ञान कर्म शक्ति, शक्ति। बाद में क्रिया शक्ति। हाँ, फिर कुछ करना भी तो है, फिर तो लग गए। अब जानना है कैसे करेंगे फिर। अब जाना है आश्रम, नवरात्रि में जाना है। अब तो नवरात्रि चला गया, शिवरात्रि में जाना है, बुकिंग करना है। कैसे होगा, क्या होगा, देश में चला गया मन। स्वामी जी। हाँ। ये तीनों चीजें रेस में लगा देती हैं, तब हम मिजरेबल हो जाते हैं। तो शांत मन को शांत करने की क्षमता। हाँ सोनी। हाँ, किसने बोला, क्या बोला? सोनी क्या बोल रही? ये इच्छा, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये सब क्या है? मतलब ये जो पॉइंट हो रहे हैं, क्या है? किस चेतना के अलग अलग मोड्स को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, जिन अलग अलग चीजों पे मन बुद्धि चित्त, अलग अलग पहलू। जिन चीजों पर वो चलता है। वे ऑफ एक्सप्रेशंस। वे ऑफ एक्सप्रेशन, मोड्स ऑफ गुरुदेव ने ऐसे अवर कॉन्शियसनेस इज एक्सप्रेस्ड इन 6 वेज ऐसा बताया ना पहले। मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन, हाँ अलग अलग तरह से दिखता है वो। हम्म। और प्रकाश की अनुभूति वर्तमान क्षण में ही होती है, इसलिए बोला। हम्म। केवल वर्तमान में हो सकती। प्रकाश एक अनुभूति है, तो फिर इसको ये भी हो सकता है कि योग निद्रा में भी कभी हमने जो अनुभव हुआ तो वो प्रकाश है। हाँ हो सकता ओके। अच्छा। बोल, ये जैसे कोर्स लेने की इच्छा है या कुछ करने की इच्छा है, सत्संग करने की या कुछ भी है। इस तरह का काम, तो इसको फिर कैसे इसको जोड़े वर्तमान? अच्छा है, इच्छाएं
रेस में नहीं लगानी चाहिए हमको। जो बोला ना गुरुदेव ने, जो सही एक्शन है, समय पे कुछ करना है, वो तो करना ही है, करना चाहिए भी, नहीं तो मन दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, तो वो हाथ से निकल जाता है, ताप बन जाता है, ज्वर, तब गड़बड़ होता है। उठा है, कोर्स करने की इच्छा है, सत्संग करने की इच्छा, करिए। पर अगर नहीं, अगर हो जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है या नहीं होता है, तो कोई बात नहीं। शांत कर रखने की क्षमता, मन को शांत करने की क्षमता। बहुत एडिटिंग कर दिया इसको, बहुत एडिटिंग कर दिया, और उल्टा भी कर दिया। जो लोग उस दिन देखे होंगे, बहुत छोटा कर दिया He गुरु। has repeated that word Prakash and presence so many times, Swami ji. Actually यहाँ पे एक दो बार ही आया हूँ। और 2-3 बार सत्संग में शायद बोले थे। प्लस वो जो टीचर्स को बोला था वो भी उन्होंने रिपीट किया सत्संग में। एक्सपेरिमेंट तो वहीं से शुरू हुआ था, एक्सपेरिमेंट नहीं, नॉलेज। तो मधुरा यही था मेन। इसको हिंदी में भी बताया था गुरुदेव के बाद में। मेन यही था। Towards the end, he's also mentioned that 6 modes of intellect and ego, ना? सेम 6 सब कॉन्शियसनेस है, तो कॉन्शियस नोट्स के ये 3 अलग अलग पहलू हैं, ईगो, इंटेलेक्ट एंड माइंड। तो ये दिखेंगे 6 रूप। चले फिर, सुट्टी बनाए, सुट्टी। ध्यान की स्वामी जी मेडिटेशन। तो आज ना मैंने विरेचन किया, तो ऐसा लग रहा है कि मैं जाके रेस्ट करूं। शाम को ध्यान व्यान हो गया, अपने से किया है विरेचन, तो अभी मोड सोने का है। ये सन क्या होता है स्वामी? विरेचन क्लींजिंग, अंदर से सफाई। त्रिफला खाना भी त्रिफला भी विरेचन का काम करता है। तो मैंने थोड़ा स्ट्रांग वाला दवाई लिया। एक विरेचन गति भी आता है ना समझिए। नहीं, उससे ज्यादा स्ट्रांग। कल हम लोग देख लेंगे वो माँ के हाथ में गन्ना, ललिता त्रिपुर सुंदरी, और एक हाथ में बाण, फूलों के बाण। क्या क्या है, पहला याद है क्या है? हर्षण, हर्षणा, रोमांच और मोहना, आकर्षण, रोज, मोहना, रोज, मोहना, फिर शोषण, शोषण होता है, फिर मारण।
गुरुदेव के पास कितना खान पड़ा हुआ है, नहीं? समय स्थान में निकल के आता रहता है। या हम लोग का भी सौभाग्य है। एक लाइफ टाइम में स्वामी जी पॉसिबल है, मतलब हाँ? एक क्या? लाइफ टाइम में इतना सारा नॉलेज जीना? सारा नॉलेज का बात नहीं है कि कोई भी एक बात पकड़ लेंगे तो काम बन जाएगा। सब नॉलेज पकड़ने की जरूरत नहीं। और फिर वो भी गुरुदेव ने बोला, वो वाला देखा था क्या आप लोगों ने कि एक संत थे जिनको केवल शिव चाहिए थे, पार्वती नहीं चाहिए थी, तो अर्धनारीश्वर बन गए। गुरुदेव तो बहुत अच्छे हैं पर उनके आसपास लोग ठीक नहीं है, सिक्योरिटी अच्छा नहीं है, सेक्रेटरी लोग अच्छा नहीं है, वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजर लोग ठीक नहीं है। गुरुदेव तो ठीक है, टीचर लोग भी ठीक नहीं है। ये कौन सा दिन था? 27 तारीख को गुरु पूजा के लोग आ गए थे, गुरु पूजा फेस्टिवल, और लगभग सब अपने अपना गुरु पूजा का किट निकाल के गुरुदेव से आशीर्वाद दे। देखिए, गुरुदेव का भी नॉन जजमेंटल जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, या कॉन्शियसनेस की वास्टनेस, उसकी जो सबको वो किट पे छू छू के जो उनकी इच्छा है ले लो। अरे किट दिया किसने तुमको? तुम गुरु पूजा कर। पर वही है, दूसरों को उंगली उठाना भी बड़ा अच्छा लगता है हमको। यही वो शिव शक्ति वाला ज्ञान यही है। अगर माँ को उसी रूप में सामने आना है तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। आपको पकड़ में आई बात? अगर ज्ञान उस दिन आपने वीडियो सुना होगा तो शिव बिना शक्ति के नहीं हो सकते, और शक्ति तमस रजस सत्व तीनों रूप में दिखेंगी और तीनों के परे भी दिखेंगी। तो आप जिस रूप में अभी वो इस पल में यहाँ है, उस रूप में उनको सम्मान देना। ये बात पकड़ी आप लोगों ने? हाँ ना, कुछ तो सर हिला दीजिए, ना हिला दीजिए। वही वही वही। उस दिन जब गुरुदेव बैठ के ना स्क्रीन पे यही देख रहा था, देखो गुरुदेव माँ की उपस्थिति का सम्मान उनके हर रूप में हर पल में करते हैं। वो देवी स्तुति है ना, या देवी सर्वभूतेषु, ये मैं बोल भी रहा था, एक दिन हमारा डिस्कशन चल रहा था, तो उसमें एक बार कहीं पे माँ को बोलते हैं मातृ रूप में, कभी लक्ष्मी के रूप में, कभी क्षुधा। क्षुधा मतलब प्यास। अब प्यास राजसिक तामसिक सात्विक कुछ भी हो सकती, पर है तो वो माँ ही। जिस रूप में किसी में प्यास दिख रहा है वहां आप माँ को देख रहे हैं। देवी स्तुति जब भी होती है नवरात्रि में तो मैं ये शेयर करता ही हूँ कि माँ आंखों के सामने से कभी जाती नहीं, और माँ के सामने से हम कभी जाते नहीं। देवी स्तुति में एक जगह माँ को बोलते हैं भ्रांति रूपेण। पूछिए, भ्रांति, हेलुसिनेशन, वो भी जहां भ्रांति दिख रही वहां भी माँ ही देख रहे हैं। अब सामने वाले को यही लग रहा है गुरु पूजा का किट में गुरुदेव छू देंगे तो पता नहीं क्या चमत्कार हो जाएगा, मुझे तो नहीं पता।
ऐसे गुरु पूजा का किट कोई और दे रहा है। और जब हमको ये बात समझ में नहीं आती कि जीवन भी उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं के आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, किट भी उन्हीं का है, पर गुरुदेव तो जजमेंट करते नहीं। स्वामी जी, अगर कोई जैसे किसी के जान देने के लिए तुड़ा हुआ है, तो क्या ऐसे स्थिति में भी हमें माँ का ही रूप समझ के सब एक्सेप्ट करना चाहिए? मुझे नहीं मालूम एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है तुम्हारा, वो तुमको देखना पड़ेगा। मुझे पता है मेरा एक्सेप्टेंस क्या है। मत करो एक्सेप्ट। माँ के रूप में मत देखो, जानवर के रूप में देख लो, क्या जाता है। जो चीज जो है वही रह जाएगी, हमारे देखने ना देखने से क्या होता है। कोई आदमी अंधा है तो थोड़ी सामने वो जो चीज है वो बदल जाएगी। करना एक्सेप्ट करे कोई, करना है करो, नहीं करना मत करो, अपनी इच्छा है। मारना है मारो, बचना है बचो, जो करना है करो। जो करेंगे वैसा फल भी भोगना होगा। जो नहीं करेंगे वो भी फल भोगना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने बोला ही दिया, सुनना चाहिए, नहीं सुनते नहीं हो तो। एक्शन जब प्रॉपर नहीं होता है तो भी हमको मिजरेबल बनाता है, जब एक्शन नहीं करते हैं तो भी मिजरेबल होते हैं। बहुत लोग एक्शन करके भी मिजरेबल हो जाते हैं। जब प्रकाश की अनुभूति बार बार होती है और प्रकाश में हम स्थिर होते हैं, वो हम में स्थिर होता है, तो ये जो प्रॉपर है वो हमको समझ में आने लगता है। क्या है प्रॉपर, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, नहीं करना है। सिग्निफिकेंस ऑफ इनसिग्निफिकेंट थिंग्स वो भी समझ में आने लगता है। स्वामी जी, और क्या करना चाहिए? जैसे अभी पूरा साधना मुझे वगैरह सब कर, मुझे नहीं पता है क्या करना चाहिए, वो तुमको डिसाइड करना है। अगर तुम्हारा मन शांत नहीं है तो किसी का भी मन अगर शांत नहीं है तो डाइवर्शन है, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। चाहे जिस कारण से भी मन शांत है, मन में बॉडरेशन है, वो बताता है आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। गुरुदेव से बात नहीं हो रही, आप परेशान है, आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। आपको किचन का खाना अच्छा नहीं लग रहा है, उससे आपका मन परेशान है, आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत गुरुजी से बात हुआ स्वामी जी, है। गुरुजी से फोन हो गया, तो आप गुरुजी बोले देखता हूँ करके, सब जो भी था बता दिया, डायरेक्ट फोन हो गया। तो गुरुजी नवरात्रि के टाइम में फोन हो गया, गुरुजी बोले हमें देखता हूँ। और तो फिर अभी बात करने की क्या बात कर सकते। क्योंकि अभी जान पे आ गया स्वामी जी। जो करना है करो। जान पे आई है तो काम तो करना ही चाहिए। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? मरने के बाद थोड़ी कुछ होता है।
उस दिन सच में जब गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे थे ना टीवी स्क्रीन पे, तो सब दिखते ही हैं। इतना अद्भुत लग रहा था ना देखने में, और ऐसा लग रहा था जैसे उसी दिन या उसके पहले वाले दिन गुरुदेव ने ये ज्ञान बोला, कहानी बताई थी। तो शिव बिना शक्ति के नहीं हो सकते, और शक्ति जहां भी होगी तीनों रज क्या तमस रजस सत्व तीनों में होंगी। दिख रहा था सामने, माँ ही तो दिख रही। ये तो हम लोगों को सबको पता ही है ना, पहला 3 दिन हम माँ के तमस के अधिष्ठात्री के रूप में माँ को सम्मान करते हैं। ये 3 दिन रजस, 3 दिन सत्व, और 10वें दिन तीनों के परे। देवी स्तुति बहुत अच्छा है नहीं? क्या क्या है? मातृ रूपेण, शांति रूपेण, बुद्धि रूपेण, विष्णु मायती शब्द था, विष्णु के माया के रूप में, क्षुधा, लक्ष्मी, भ्रांति, और क्या है किसी को याद है? लज्जा रूपेण सुपेण संस्कृत, रूपेण संस्कृता, भ्रांति रूपेण, बोलो शक्ति रूपेण, बोलो, निद्रा रूपेण, होल्ड 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 होल्ड। लज्जा किसको होती है? काया रूपेण भी। अरे थंभा थंभा थंभा, लज्जा किसको होती है? स्त्री को। किसने बोला? ये ज्ञान किसने दिया? स्वामी जी मैंने। लज्जा जब बोध जागता है, ज्ञान होता है, तब लज्जा होती। अब समझ में आया क्यों लज्जा रूपेण संस्थिता? जैसे छोटा बच्चा होता है, देखा आपने, बिना कपड़े के कहीं भी चला जाएगा वो, उसको बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। जब बोध जागता है ना, तब लज्जा होती है। जब ज्ञान होता है तो लज्जा होती है। तो वो स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता, कोई भी हो सकता है। कल्पना जी, हाँ जी। इसीलिए लज्जा रूपेण संस्थिता, क्योंकि वहां बोध है, इसीलिए लज्जा है। क्या बढ़िया नहीं? क्या बोल रहे थे राजू? आज आपके आवाज में बहुत ठहराव स्वामी जी। मुझे लग रहा है कि वो लास्ट के 2 स्टेज में कहीं तो है आप। कुछ नहीं भी रे, चलुआ, इसीलिए ज्यादा डराव आ गया। और क्या? स्वामी जी रेतन में तो वो मेडिकेटेड घी देते हैं ना। और छाया रूपेण, छाया का अर्थ क्या होगा? केवल ना सुन करके बहुत अच्छा है। छाया का अर्थ क्या होगा? थोड़ा और टाइम ले लेते हैं हम। शैडो, शैडो। जी भैया, उसका इंग्लिश नहीं छाया का अर्थ स्वामी जी मेरे हिसाब से होता है जो हमेशा कभी आपको छोड़े ही ना, जो आपके साथ रहे, जो आपके साथ ही है। मतलब मेरे हिसाब से छाया का मतलब वो हुआ कि आपसे अलग है ही कृपा नहीं। भी होता है। क्या बोले काका? कृपा भी होता है, कृपा। रेखा क्या बोल रही? रूपा बोला मैंने। अरे यार, तुम लोग कहाँ सोचते हो सब? आशीर्वाद के रूप में रहता है। ए काका, छाया का मतलब ये है, रूप नहीं है, रूप का प्रतिबिंब है। अब बात पकड़ में आई? हम नहीं, हमारा हमारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब तो नहीं बोलना चाहिए, छाया को छाया ही बोलेंगे। मतलब प्रतिरूप। वास्तविक रूप नहीं है, उसकी छाया है। तो जो कुछ भी देख रहे हैं ना, वो छाया है माँ का। तो मतलब शेड है, आपकी छाव छाव पड़ती है। छाया इज
पर छाया आपको कभी छोड़ती नहीं ना स्वामी जी, मतलब छाया है। आप सही सही एकदम सही पकड़े हैं, एकदम छाया नहीं छोड़ती। मेरी छाया आपको नहीं छोड़ती कि आपकी छाया मुझे नहीं छोड़ती? मेरी खुद की छाया की मुझे छाया कभी नहीं नहीं, यहाँ छोड़ती, आपकी इसका छाया, मतलब ये आपकी छाया की बात कर रहे हैं क्या देवी स्तुति में? यस थोड़ा यस यस यस, क्योंकि छाया थोड़ा रूपेण का थोड़ा मतलब वो थोड़ा मुझे तो कभी नहीं छोड़ती। थोड़ा तो विमर्श करना चाहिए ना, थोड़ा तो विमर्श करिए। ये आपकी छाया और मेरी छाया की बात तो नहीं कर रहे ना। मुझे लगा कि जो मुझे कभी लगा ना लगा छोड़े वही है। हाँ ठीक है, आपको लगा वो बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ देवी स्तुति में आपकी छाया की बात नहीं हो रही ना। अच्छा, विश्व की छाया की बात हो रही, जो पूरे भी विश्व में जो है। नहीं पता, पर आपकी और मेरी छाया की तो बात नहीं हो रही, इतना तो पक्का पता। जब ईश्वर देवी की छाया ही तो कृपा है। जब देवी स्तुति कर रहे हैं तो वहाँ व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती ना। ऐसे भी देख सकते हैं कि छाया कभी छोड़ के नहीं जाती। अरे अंधेरे में छाया बनती है क्या? छाया कब बनती है? जब रोशनी होगी तभी तो, प्रकाश होगा तभी तो छाया बनेगी। तो जहाँ ज्ञान होगा तभी तो ईश्वर का छाया, ईश्वर की छाया पड़ेगी। थोड़ा इसी को विमर्श बोलते हैं, तो सोचना चाहिए ना। छाया केवल रोशनी में बनती है, प्रकाश। और क्या है माँ का देवी स्तुति में? सीमा क्या बोल रही थी? अनुपमा ने छाया बोला था। हाँ स्वामी जी, छाया मतलब वही प्रतिरूप ही हुई। क्या बोल रहा स्वामी अनुपमा? जी, भ्रांति के बारे में बताए ना। क्या? भ्रांति एक रूपेण संस्थित। स्वामी जी एक और बताते हैं, स्मृति रूपेण संस्था, मतलब यादों में भी जो है वो माँ ही है। स्मृति जो हमें रहती है उसमें भी तो में माँ नहीं है, वो जो स्मृति की जो क्षमता है वो माँ है। स्मृति भी तीन तरह की होती है, सात्विक हो सकती है, राजसिक हो सकती है, तामसिक हो सकती है। नहीं, स्मृति राजसिक तामसिक सात्विक नहीं होती। स्मृति केवल स्मृति होती है। स्मृति में जो डेटा है ना उसका बात नहीं हो रहा, आपके मोबाइल में जो डेटा है उसका बात नहीं हो रहा, मोबाइल के जो मेमोरी मेमोरी है ना उसकी बात हो रही, स्मृति की बात हो रही। और क्या है? हो गया, देवी स्तुति भी हो गई। चले वो 10। स्वामी जी जो बता रहे थे कि माँ के तीन अलग अलग तीनों दिन होते हैं, तमस रजस सत्व। वो पहले दिन तमस का ही होता है क्या, पहले 3 दिन? हाँ, इसीलिए 3 दिन जो है सो पूजा में तमस बढ़ा रहता है, कुछ भी होता है। आपका तमस बढ़ा रहता हाँ, जितना बिलोंगने से है ना, तो देखते हैं कि पूजा में थोड़ा सा है? क्या ये लोग में से? मतलब पूजा के पार्ट जैसे होता है, तो जो जो पूजा बीता जाता है तो ये तजस तमस रजस का सत्व का फीलिंग आता है। मैंने 2-3 साल से गुरुदेव को फॉलो कर रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि ध्यान के माध्यम से ये फील अनुभूति हो रही है। क्या बात है। चलिए कल मिलते हैं। जय गुरुदेव। स्वामी जी। जय जय राम। जय गुरुदेव स्वामी।